discussions on civil works and infrastructure facilities in GHMC area and also in the surrounding areas and the other municipalities as well, sir. Sir, first, I would like to discuss on GHMC. And before going ahead with my speech and with my observations and suggestions, I would like to come on record and thank the GHMC staff for working day and night in the pandemic time in creation of containment zones, fighting against COVID, and making all necessary arrangements in the containment areas for providing all the essential commodities and taking care of the needs of the people who were in isolation in containment zones. It is a commendable work and it needs to be applauded. The work taken up in that time by all the GHMC staff and also the ASHA workers, I would say, in the GHMC limit areas, they have been working and still they are working. अभी भी वो लोग अपने काम को अंजाम दे रहे हैं. तो मैं मेरी पार्टी की जानिब से और मेरी जानिब से इन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक गैर मामूली काम किया. और जब मैं खड़े रहकर इन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, सैनिटेशन स्टाफ का भी और दूसरे सारे लोगों का, पुलिस का भी मैं कहूंगा कि उस वक्त बहुत ही गैर मामूली काम उन्होंने किया. उसके साथ ही साथ मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें जिक्र किया अन्नपूर्णा 5 रुपीज़ मील्स का. तो अन्नपूर्णा ये मील्स का भी जो काम कोविड के टाइम पर किया गया है, जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में चला गया और उसमें 5 रुपया नहीं लिया गया बल्कि फ्री लंच और डिनर दिया जाता था. इसके लिए भी मैं हुकूमत का और मिनिस्टर साहब का और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि लोग परेशान थे और उस वक्त भूखे थे और यह अन्नपूर्णा ने बहुत मदद की और बहुत बहुत बड़ा काम किया. इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं. एंड सर, नाउ गोइंग ahead and talking about GHMC, I would like to say that the Pearl City of Hyderabad city is famous for its pearls and it is also been called as a Pearl City. Hyderabad सिर्फ मोतियों का शहर नहीं, हैदराबाद लेक्स का शहर है, हैदराबाद चार मीनार का शहर है, हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शहर है, हैदराबाद हुसैन सागर कट्टे का शहर है, हैदराबाद हाई कोर्ट का शहर है, खूबसूरत बिल्डिंग का, हैदराबाद किले गोलकुंडे का शहर है. और ये भी मैं कहूं तो गलत ना होगा कि कोहिनूर गया था तो यहीं से कभी हुकूमत ईरान के ताज पे जगमगाता था तो कभी मुगलिया सल्तनत की ताज पर था, तो आज बर्तानिया के क्वीन के ताज में है. तो ये शहर जाना जाता है, पहचाना जाता है. और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि मिनिस्टर साहब ने सारी तफसीलात बयान की कि कौन से जुमरे में, कौन से शोबे में किस तरफ कितना काम हो रहा है. रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और के बारे में उन्होंने तफसीलात पेश की, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन के बारे में कहा, नाला इंक्लूडिंग लैंड एक्विजिशन और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के बारे में कहा, वाटर सप्लाई के ताल्लुक से कहा, स्ट्रेटेजिक
रोड डेवलपमेंट SRDP प्लान के बारे में कहा, कॉम्प्रिहेंसिव रोड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के बारे में कहा, 2 बेडरूम के प्रोजेक्ट के ताल्लुक से कहा, LED लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, सोलर रूफटॉप के बारे में, architecture illumination of monuments like Durgam Cheru and Charminar, and also the Makkah Masjid will be illuminated, and Golconda Fort and 7 tombs will also be illuminated in this. اور اس کے ساتھ ساتھ اربن بایوڈائیورسٹی کے لیے کہا, پلے گراؤنڈ, سوئمنگ پولز اور اسٹیڈیمز کے تعلق سے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تعلق سے کہا, اور پھر اس کے بعد میں C&D ویسٹ کے بارے میں کہا, سائنٹیفک ڈسپوزل آف ویسٹ کیپنگ کے بارے میں کہا, اور سوچھ آٹوز کے بارے میں, بس شیلٹرز کے تعلق سے, اور پھر دوسرے بستی دواخانہ, پبلک ٹوائلٹس, اناپورنا بلڈنگ میلز اور بلڈنگ اینڈ کمیونٹی اسٹرکچرز کے بارے میں. تو سر, جب ہم یہ تفصیلات کو دیکھتے ہیں تو کافی خوشی اور مسرت بھی ہوتی ہے کہ 2014 اور 15 سے لے کر آج تک 32,532.87 اماؤنٹ کو منظور کیا گیا ہے ان سارے کاموں کے لیے. تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی جستجو ہے اور یہ کوشش ہے کہ شہر حیدرآباد کو گلوبلی پہچان دلانے کے لیے. اور پھر چیف منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ دا ورلڈ موسٹ ڈائنامک سٹی امانگ 130 سٹیز. اور پھر holiday5.com نے بھی آج سے 2 دن پہلے 134 سٹیز میں دا بیسٹ سٹی ٹو لیو اینڈ ورک کا بھی اعزاز حیدرآباد کو ملا. اور پھر حیدرآباد ترقی کر رہا ہے اور آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 1999 یا 2000 میں ہائی ٹیک سٹی کے آغاز کا سلسلہ ہوا, اور 20 برس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آج ہائی ٹیک سٹی میں یہ کہوں گا کہ لوگوں نے اپنے آبزرویشنز میں یہ کہا کہ حیدرآباد از لائک اے نیو یارک آف انڈیا کہہ رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے بھی میں حکومت کا مبارکباد دیتا ہوں کہ 20 برس میں ایک ہائی ٹیک سٹی ایک نئے شہر کی طرح ترقی کرتا گیا, بلند عمارتیں آئیں, IT سیکٹر میں ہم آگے بڑھتے گئے, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اپنا مقام بناتے گئے. اور واقعے میں جب ان علاقوں میں جاتے ہیں تو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ آیا ہے, شہر حیدرآباد بڑھتا گیا, پھیلتا گیا. قلی قطب شاہ نے جب حیدرآباد کی بنیاد رکھی تھی تو دعا کیا تھا کہ اے اللہ میرے شہر کو اتنا بڑا بنا کہ جتنے پانی میں مچھلیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے حیدرآباد کو بڑھائے. تو آج حیدرآباد شہر ہر کسی کے لیے ایک ڈیسٹینیشن کا پوائنٹ ہے, اور ہر انویسٹرز بھی آنا چاہتا ہے حیدرآباد میں, جیسا کہ ایپل بھی آئے اور دوسرے بھی, اور کئی ملٹی نیشنل کمپنیز آ رہے ہیں, مائکروسافٹ ہے, گوگل ہے. حیدرآباد میں اگر آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں؟ کہ حیدرآباد کی خصوصیت ہے کہ حیدرآباد میں وہ محبت ہے. ان فضاؤں میں آنے والے کو ہم ہاتھ پھیلا کر اس کو اپنے گلے لگاتے ہیں. حیدرآباد کی خاصیت ہے کہ کوئی بھی زبان بولنے والا اپنے آپ کو شہر حیدرآباد میں اپنے گھر میں محسوس کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ زبان کی پابندی ہے, یہاں پہ ہندی اردو بھی بولی جاتی ہے, انگلش بھی بولی جاتی ہے, تیلگو بھی بولی جاتی ہے, اور حیدرآباد کا کوزین بھی مشہور ہے, حیدرآباد کی ہر چیز ہے. یہی کھینچتا ہے سب کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ساری دنیا میں اگر ہم ہائی ٹیک سٹی کی ترقی پر حکومت کا مبارکباد دیتے ہیں تو ہم یہ بھی ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ 20 برس میں ہائی ٹیک سٹی آج نیو یارک کی طرح دکھ رہا ہے, اور اس کو لوگ کہہ رہے بھی ہیں کہ ہندوستان کا نیو یارک ہے. لیکن میں یہاں کھڑے رہ کر افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ 20 برس میں وہ نیو یارک بن گیا, لیکن 400 برس پرانا شہر جو ہے وہ آج بھی خستہ حال ہے, وہ آج بھی ترقی کے لیے تڑپ رہا ہے, پکار رہا ہے, چیخ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ مجھ پر بھی کوئی توجہ دے اور مجھے بھی کوئی ہائی ٹیک سٹی کی طرح بنا دے. 400 برس پرانے شہر کو بس کر ہو گئے, لیکن آج بھی پرانے شہر کی گلیاں تنگ ہے, راستے تنگ ہے, ٹریفک کا معاملہ ہے. ہم کو یقین ہے
کہ حکومت ضرور پرانے شہر کی ترقی پر بھی غور کرے گی، پرانے شہر میں بھی خوشحالی لانے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک سینٹر، یا میں یاد دلاؤں منسٹر صاحب کو کہ انہوں نے ایوان میں اعلان کیا تھا میرے مطالبے پر کہ فارما سٹی آئے گا، ہائی ٹیک سٹی کا بھی ایک برانچ ہم شمشاباد ایئرپورٹ کے قریب یا مہیشورم کے ایریا میں لائیں گے، جس کے ذریعے اولڈ سٹی بھی ڈیولپ ہوگا، ترقی ہوگی۔ اور مجھے یاد ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں پرانے شہر کو استنبول بناؤں گا۔ آج انتظار ہے ہم کو کہ پرانا شہر کب استنبول بنے گا، ہم کو انتظار ہے کہ پرانا شہر میں کب ترقی آئے گی۔ آج پرانے شہر میں چار مینار ہے، آج ہمارے پرانے شہر میں گولکنڈا فورٹ ہے، 7 ٹومز ہے، اور سب سے پہلی مسجد ہے، اور اس کے بعد میں ایک کالا تاج محل بنایا گیا تھا، وہ بھی ہے پرانے شہر میں۔ ٹورزم کے بھی بہت سے مقامات ہیں، لیکن آج وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ آپ پرانے شہر کی ترقی کے لیے ایک 10,000 کروڑ کا اعلان کریے۔ اگر آپ اعلان کریں گے جس کے ذریعے روڈ وائڈننگ کو لینا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ 5-6 برس میں شہر حیدرآباد اور بالخصوص پرانے شہر میں بھی کافی روڈ وائڈننگز ہوئے ہیں، SRDP میں کافی فلائی اوورز بھی لیے گئے ہیں، اور سیوریج سسٹمز بھی جو نہیں تھا پرانے شہر میں وہ بھی آئے ہیں، اسٹرانگ واٹر ڈرینز کے بھی کام آئے ہیں، جیسے کہ ہمارے کاروان میں کانسٹیٹوئنسی میں حکومت نے 320 کروڑ کا ایک سیوریج اور اسٹرانگ واٹر ڈرین کا ایک پیکج کو منظور کیا۔ اس کے لیے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میرے کانسٹیٹوئنسی میں چندرائن گٹے میں بھی ہم نے چیف منسٹر صاحب سے، KT راما راؤ صاحب سے ملاقات کر بلا گوڑا جو ایریا ہے میرے ایریا کا، وہاں پہ سیوریج لائنز نہیں ہے، اس کے تعلق سے ہم نے مطالبہ کیا تو 310 کروڑ روپے کا اسٹیمیٹ آیا ہے، اور وعدہ کیا کہ ایڈمنسٹریٹو سینکشن دیں گے، آہستہ آہستہ وہ کام بھی ہوگا۔ میں اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا اس کے ساتھ ساتھ کہ کئی مسائل ہیں، روڈ وائڈنگز 10 برس سے پرانے شہر میں ویسی ہیں۔ آنریبل اسپیکر صاحب، 2 ایشوز جو میں 20 سال سے مسلسل کہہ رہا ہوں، مجھے یاد آتے ہیں۔ آج جو راجیہ سبھا کے ممبر ہیں جناب سریش ریڈی صاحب، وہ آپ کی کرسی پر آندھرا پردیش اسمبلی میں اسپیکر تھے، تو میں نے ان سے بڑے ہی تڑپتے ہوئے انداز میں زوردار آواز میں کہا تھا کہ اسپیکر صاحب آپ ہمارے ریسکیو کو آئیے، چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریے۔ چار مینار آج اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو ختم ہو جائے گا، پولیشن سے خطرے میں ہے۔ تو اس وقت کے اسپیکر صاحب نے، سریش ریڈی صاحب نے کہا، اکبر صاحب آپ کے اس کے مطالبے پر میں منسٹر صاحب کو کہوں گا۔ منسٹر صاحب نے، اس وقت کے منسٹر نے اٹھ کر کہا کہ ہم چار مینار پیڈسٹرائزیشن کا پروجیکٹ بنائیں گے، چار مینار کو بچائیں گے۔ اور سریش ریڈی صاحب نے کہا کہ آج تو آپ کو خوشی ہو رہی ہوگی کہ پروجیکٹ آگے بڑھے گا، لیکن آج بھی چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ ایک وقت کا مسئلہ ہوتا ہے جو میں بار بار اٹھاتا ہوں، دوسرا چار مینار پیڈسٹرائزیشن کا پروجیکٹ کی کمپلیشن، لیکن آج اتنے برس کے باوجود بھی چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ پتھر گٹی اتنا خوبصورت، سر آئی ہیو ٹریولڈ آل اکراس دا ورلڈ سر، اٹلی گیا ہوں، یورپ گیا ہوں، امریکہ، ساؤتھ آف امریکہ، ایوری ویئر، افریقہ آلسو۔ سر جو بھی پرانا شہر ہوتا ہے، جس بھی شہر کا پرانا شہر ہوتا ہے، وہ ان کا سب سے بڑا ہیرا ہوتا ہے، ایک جویل ہوتا ہے، اس کو خوبصورت بناتے ہیں، اس کے ہیریٹیج کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کے آرکیٹیکچر کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن آج آپ بتائیے کہ ہمارا ہیریٹیج، ہمارا آرکیٹیکچر پروٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ KT راما راؤ صاحب کو مبارکباد دوں کہ بار بار میں نے مطالبہ کیا تھا موزم جائی مارکیٹ کو بچانے کے لیے، موزم جائی مارکیٹ کو رینویٹ کرنے کے لیے، ہیریٹیج کو بچانے کے لیے، اور بہت اچھا کام ہوا، اور موزم جائی مارکیٹ آج اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پتھر گٹی، نئے پل سے لے کر پتھر گٹی، اور پتھر گٹی سے لے کے گلزار ہاؤس، گلزار ہاؤس سے لے کے چار مینار، یہ سٹریچ اتنا خوبصورت ہے، کبھی وقت نکال کر جا کر دیکھیے کہ وہ پورا سٹریچ has a beautiful arches, stone arches. میں گڑبڑ کرنے کے بعد، sir, in this house, when in Andhra Pradesh Assembly, I had raised this issue.
Then the then government had given instructions to clean those arches. The arches were cleansed and the beauty had come out. लेकिन आज भी हम देखते हैं कि वो आर्चेस को छुपाने के लिए जो जैसा बोर्ड डालना चाहता है वो बोर्ड डाल देता है. एक पर्टिकुलर साइज ऑफ बोर्ड एंड नेम का एक ऑर्डर और जियो भी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है. करोड़ों रुपया खर्च कर वो आर्चेस को रिवाइव करे, लेकिन आज वो नहीं हो रहा है. जब इसके साथ साथ मैं मौजम जय मार्केट की बात करता हूं तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि केटी रामाराव साहब से हमने मुतालबा किया था कि पुराने शहर में भी सिकंदराबाद क्लॉक टावर की तरह एक क्लॉक टावर है. पुराने शहर में भी क्लॉक टावर है. और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को लेकर जाकर हमने दौरा किया था म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के. उसके बाद में पुराने शहर के उस क्लॉक टावर को रिपेयर किया गया, बनाया गया और आज वो खूबसूरत दिख रहा है. इसका शुक्रिया अदा करता हूं. लेकिन उस क्लॉक टावर के पीछे चौक की मार्केट है जो मुर्गी मार्केट से मशहूर है. ऑनरेबल स्पीकर साहब, छोटा सा एक मैं कहूंगा कि 300 स्क्वायर यार्ड्स या मैक्सिमम 500 स्क्वायर यार्ड, लेस देन 500 स्क्वायर यार्ड्स पे एक 1 स्टोरी एक पुरानी बिल्डिंग है जो कभी भी गिर सकती है. और हमने कहा कि यहां पर आप एक मार्केट बनाइए 4 लेवल्स की. टूरिस्ट आते हैं खिलवत पैलेस को देखने, टूरिस्ट आते हैं चार मीनार को देखने, टूरिस्ट आते हैं लाल बाजार में एक एंटीक की मार्केट बनाइए और आप वो स्ट्रक्चर को तोड़ दीजिए. तो आप गौर करिए साहब, आप गौर करिए स्पीकर साहब, बड़ी बड़ी इमारतें हेरिटेज में नहीं आती. उस्मानिया हेरिटेज नहीं, इरम मंजिल हेरिटेज नहीं, छोटी सी 300 गज की इमारत, पानी टपक रहा है, आधा गिर गया है, नहीं बना रहे. रीजन व्हाट? नो, इट इज अ हेरिटेज स्ट्रक्चर. इट इज इन अ डिलैपिलेटेड कंडीशन. सर आप उसको तोड़कर बनाइए, एक मार्केट बन सकती है और वो अतराफ के लोगों को दीजिए. पार्किंग लॉट, खिलवत पार्किंग लॉट पीपीपी प्रोग्राम में लेंगे बोले, पब्लिक पार्टनरशिप में. सर nobody is coming forward to take up that parking lot. sir, चार मीनार के पास खिलवत के पार्किंग लॉट, लेकिन वो पार्किंग लॉट को कंप्लीट नहीं किया जा रहा है. मैं जानना चाहता हूं कि कब किया जाएगा. अगर कोई फॉरवर्ड नहीं आ रहा है तो जीएचएमसी क्यों नहीं बनाती उसको? पार्किंग लॉट वैसी है. सर thousands of tourists, sir, before this lockdown, in a single day, more than 25,000 tourists used to come to visit Charminar and Chowmahalla Palace and Golconda Fort. तो सर अगर हम हमारे टूरिज्म को डेवलप नहीं करेंगे, टूरिज्म को डेवलप करना है सर. सर I had requested time and again to take up this work. Sir, for the Charminar, successful implementation of Charminar pedestrianization project, we need to rehabilitate वो जो छोटे बंडियां वाले, डब्बे वाले, पत्थर गट्टी से लेकर चारमीनार तक हैं, उनको. Sir, it is not just the historical monument there, it is also an economic center of old city, sir. कई खानदान पलते हैं चार मीनार में बंडियां लगाकर, डब्बे लगाकर, कई घर पलते हैं. अगर चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के नाम पर हम उनको साफ कर देंगे तो कई घर भूख में मुब्तला हो जाएंगे, परेशानी में. तो हमने प्रपोजल दिया, साथ में जाकर अरविंद साहब भी साथ में थे, मिनिस्टर साहब थे, हमने जाकर नए पुल के पास 2 ब्रिजेस बनाने का प्रपोजल बनाया, कंसल्टेंट्स को दिया, जियो भी निकाला कि वहां जितने बंडियां डब्बे वाले हैं सालार जंग म्यूजियम के पास नए पुल पर 2 ब्रिजेस डालकर उनको वहां पर अपनी रोजी रोटी का काम करने की इजाजत देंगे. सर आज तक जियो निकला लेकिन संगे बुनियाद नहीं, काम का आगाज नहीं. और मैं ये बात जरूर कहूंगा सर आपको कि लाड़ बाजार सर जो भी आते हैं, सर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आए थे या जो भी कंट्री के बड़े सरबराह आते हैं हैदराबाद को, तो वो लाड़ बाजार जरूर जाते हैं. सर लाड़ बाजार का क्या हाल है? सर मैं शुक्रिया अदा करता हूं मिनिस्टर साहब का कि मैंने कहा कि पंजाब जाकर, चंडीगढ़ जाकर देखते हैं सुनहरी गुरुद्वारा को किस तरीके से अच्छा बनाया गया, और एक डेलीगेशन जाकर वहां पर देखा कि किस तरीके से फसाड लगाया गया और किस तरीके से ब्यूटीफाई किया गया वो चंडीगढ़ के एरिया को, और उसकी मंजूरी दी गई. लेकिन आज भी
लाड़ बाजार वैसे का वैसा ही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ लाड़ बाजार में। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि जीएचएमसी में अगर ये तरक्की आई है, हैदराबाद का अगर नाम हुआ है और हैदराबाद में तरक्की आई है, तो इस चीज को ना भुलाएं कोई कि इस तरक्की में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन भी टीआरएस के साथ है, क्योंकि टीआरएस और मजलिस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चलाती है आपस में मिलकर। हम भी हैं आपके साथ। हम जब आप के कामयाबी पर खुशी मनाते हैं, जब हैदराबाद को नाम आता है तो हम भी मसरत का इजहार करते हैं। हाईटेक सिटी की डेवलपमेंट को देखकर हम भी खुश होते हैं। हैदराबाद का नाम दुनिया के नक्शे पर आने पर हमको भी खुशी होती है, फख्र महसूस करते हैं। तो पुराने शहर के इस हाल को देखकर हमको शर्मिंदगी भी महसूस होती है, हमको अफसोस भी होता है। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, मुझसे पूछते हैं लोग, अकबर साहब आप जब असेंबली में गए तो आपकी उम्र 26-27 बरस थी, लेकिन आज आप 50 के करीब आ रहे हैं, आप बूढ़े हो रहे हैं, आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आपकी दाढ़ी सफेद हो रही है, लेकिन पुराना शहर नहीं बदल रहा है। हर हुकूमत ने हमारे साथ नाइंसाफी की, सौतेला रवैया अपनाया हमारे साथ, लेकिन हमको उम्मीद और तवक्को आपसे है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर तवज्जो देंगे, रोड वाइंडिंग को लेंगे। कई रोड वाइंडिंग अब ऐसी पड़े हुए हैं, क्यों नहीं लेते रोड वाइंडिंग को? क्यों फ्लाईओवर्स का काम मंजूरी दी गई? फलकनुमा ब्रिज 3 साल हुए मंजूरी होकर आज तक शुरू नहीं हुआ। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर एक्सटेंशन कई साल हुए नहीं हुआ। हां, एसआरडीपी में बहादुरपुरे का फ्लाईओवर का काम हुआ, ओवैसी हॉस्पिटल के फ्लाईओवर का हुआ, मलकपेट से ओवैसी हॉस्पिटल का संग बुनियाद हुआ, वो भी काम हुआ। लेकिन ये काम हुए हैं, हम उसके लिए शुक्रिया करते हैं, लेकिन जो काम नहीं हुए हैं वो कब होंगे ये मुतालबा करते हैं और ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि मुसलसल हमारे मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जाती है। और मेट्रो ट्रेन के बारे में कहूंगा कि बार बार हमारा मुतालबा रहा कि पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन को लाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, केटी रामाराव साहब ने कहा कि हां मेट्रो आएगी, लेकिन सवाल यह है कि मेट्रो कब आएगी पुराने शहर में? अगर सर, आई वांट टू कम ऑन रिकॉर्ड और यह चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो अपनी असेंबली की निशिस्त से इस्तीफा दे दूंगा। सर, मैं मेट्रो ट्रेन हैदराबाद में आई है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से, अकबरुद्दीन ओवैसी की वजह से आई। मैं ठहर के असेंबली में लड़ा, मैं और जनार्दन रेड्डी साहब खैरताबाद के एमएलए थे, हम दोनों ने मिलकर लड़कर इतना गड़बड़ की। वो जनार्दन रेड्डी साहब मोनो ट्रेन कहते थे, मैं मेट्रो ट्रेन कहता था। हम दोनों के झगड़े के बाद हम दिल्ली को गए। राजशेखर रेड्डी साहब ने कहा, अकबर यू गो टू दिल्ली एंड सी द मेट्रो ट्रेन। वहां जाकर हम देखने के बाद हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन लाए। माइटास जो सत्यम था, माइटास को दिया गया था। सत्यम डूबने के बाद माइटास से ले लिया गया, उसके बाद एलएनटी को दिया गया। मेरे मुतालबे पर, मेरे लड़ने पर आया मेट्रो, लेकिन मेरे एरिया में मेट्रो आज तक नहीं है। आप बताइए सर, न सिर्फ ये कृष्णा वाटर्स फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज अगर हैदराबाद में है तो मैं समझता हूं कि वंस अगेन आई वुड रिमेंबर जनार्दन रेड्डी खैरताबाद एमएलए हु यूज्ड टू फाइट विद मी। हम दोनों लोग लड़ते थे, हैदराबाद को कृष्णा वाटर होना, हैदराबाद को कृष्णा वाटर होना। जनार्दन रेड्डी यूज्ड टू गो अगेंस्ट हिज पार्टी एंड स्टैंड विद मी एंड वी फॉट। गोदावरी वाटर्स, शशिधर रेड्डी साहब, he was an MLA then, he was with me, we fought for the Godavari waters. But sir, पानी भी जब आया तो पुराने शहर में नोट में मिनिस्टर साहब ने कहा कि रोजाना पानी दे रहे हैं। माफ करना स्पीकर साहब, पुराने शहर में रोजाना पानी नहीं आता। एक दिन में एक दिन आया तो एक दिन नहीं आता, उसके बाद के दिन को आता है, और बास जगह पे तो 5-5 दिन नहीं आता है। सेकेंड फेज का पानी पुराने शहर के लिए था, हम लड़के लाए थे। सर, तेलंगाना के पानी के साथ नाइंसाफी हुई तो तेलंगाना बन गया,
पुराने शहर के पानी के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो हम बोलें तो किसको बोलें? किसको बोलें बताइए? पानी नहीं आ रहा सर, पूरा पानी कृष्णा का जो जाता है सर, उसको डाइवर्ट कर दिया गया, आईएस सदन के पास से डाइवर्ट कर दिया गया, सैनिक पूरी तक लेकर गया। खैर मुझे एतराज नहीं है, पानी है, सबको पिलाना है, हमारे ही शहर के लोग हैं, जरूर पिलाना चाहिए, पानी है। लेकिन सर आप बताइए, अरे आप लाइन को डाइवर्ट कर दिए, हमारा पानी हमको नहीं मिल रहा, लेवल्स कम हो गए, हाफिज बाबा नगर बालापुर रिजर्वायर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लेवल्स कम हो गए, बल्लागुड़े में है लेवल्स कम हो गए, और फिर नूरका बाजार में टाकी है लेवल्स कम हो गए, मुगलपुरे में है, मिरालम फिल्टर है लेवल्स कम हो गए, अलीआबाद रिजर्वायर लेवल्स नहीं। सर आप दीजिए, पेरिफेरल एरिया में पानी जरूर दीजिए, मुझे एतराज नहीं है, देना भी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो फिर डेवलपमेंट कैसा आएगा, लोग कैसे आएंगे? लेकिन हमारा भी ख्याल करिए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इन बातों पे गौर करिए। पुराने शहर में कचरों का अंबार है, लगा हुआ है, कई दिन तक कचरा नहीं उठता है। सर रोड हैज बीन वाइडन फ्रॉम ओवैसी हॉस्पिटल टू चंद्रायन गुट्टा, रोड वाइडनिंग होके 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल से जो लाइट के खंबे हैं ना साहब, वाइडनिंग के बाद भी वो बीच रोड पे खड़े हैं। क्या हम नहीं बताए? क्या हम नहीं बोले? रोड वाइडनिंग हो गई, शॉप ओनर्स आर इंक्रोचिंग, क्योंकि वो खंबे वैसी हैं। कब हटेंगे वो? ये ऐसी चीजें हैं सर, बिकॉज ऑफ दिस वी फील and we face lot of embarrassment facing our people, sir. Sir, through you I request the government to please come for our rescue. Please come for our rescue. Please see that these issues are attended. अगर ये नहीं होगा तो फिर आप और हम जो फख्र लेते हैं कि शहर हैदराबाद को हमने आगे बढ़ाया, हम दोनों ने मिलकर काम करके हैदराबाद की शक्ल बदली है, तो आज हमारे ऊपर लोग तनकीद करेंगे, उंगली उठाएंगे और बोलेंगे कि हमने क्या किया। सर उसके साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूंगा, सर हैदराबाद की पहचान, अगर गोलकुंडा फोर्ट है, चार मीनार है, तो हैदराबाद की पहचान उस्मान सागर व हिमायत सागर है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गैर मामूली काम है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन यह भी जरूर कहूंगा कि चिवल्ला प्रणहिता प्रोजेक्ट के लिए खड़े रहकर एडजर्नमेंट मोशन देकर असेंबली को नहीं चलने देने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। जब किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, हमने कहा था कि चिवल्ला प्रणहिता प्रोजेक्ट को लाना चाहिए। सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम भी जब थी तो वो भी थी, आप भी उठकर हमारा साथ दिए थे कि हां चिवल्ला प्रणहिता प्रोजेक्ट आना है। लेकिन सर आप बताइए, इतनी बारिश हुई, मेरा गंडी पेट आज भी सूखा है, मेरा हिमायत सागर आज भी सूखा है। क्यों है? चेक डैम्स हैव कम, कैचमेंट एरिया हैज बीन इनक्रोच्ड और खाली है गंडी पेट। सर ये टैंक बंड हुसैन सागर, सर व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ हुसैन सागर? सर दिस हाउस वुड बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड सर, 4000 एकर्स ये टैंक बंड, ये सिकंदराबाद कट्टा 4000 एकड़ पर था और आज 1000 एकड़ पर है। कहां गए 3000? लुम्बिनी पार्क, एनटीआर समाधि, नेकलेस रोड, पीवी नरसिम्हा राव समाधि, वो फूड कोर्ट, सब चला गया। When we talk about the lakes getting encroached, I want to know who have encroached Hussain Sagar? Who gave the permission for that necklace road? Who gave the permission for Lumbini Park? Sir, सीवेज का कितना है? इंडस्ट्रियल वेस्ट इज कमिंग इन हुसैन सागर। कब होगा सब साफ? कब होगा ये अच्छा? मूसा नदी, वो मूसा नदी जिसके किनारे पुराना शहर बसा, वो मूसा नदी जो वैखाराबाद से शुरू होती है, वो मूसा नदी जो बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी? स्पीकर साहब, मूसा नदी हैदराबाद में तोगयानी आई थी, फ्लड्स आए थे, तो वो फ्लड से हैदराबाद को बचाने के लिए मूसा नदी बनाई गई।
لیکن آج موسیٰ ندی میں کیا ہے؟ پرانے شہر کا سیوریج جا رہا ہے. موسیٰ ندی کب صاف ہوگی؟ انکروچمنٹس بھی ہوتے جا رہے ہیں. کب ہوگی؟ مچھر ہے, گندگی ہے, اور کچھ نہیں. جب میں نے میٹرو کے تعلق سے کہا تو بولے اکبر صاحب میٹرو کی ٹرین آپ جیسا بول رہے ہیں نہیں لے جا سکتے. کیوں؟ تو بولے مجھے کہ انوائرمنٹ کلیئرنس لانا پڑے گا, موسی کے اوپر سے برج نہیں لے سکتے. لیکن موسی کے اوپر موجودہ میٹرو ٹرین کا اسٹیشن بن گیا. ہم بولتے ہیں تو ہیریٹیج آ جاتا ہے, ہم بولتے ہیں تو انوائرمنٹ آ جاتا ہے, ہم بولتے ہیں تو کچھ بھی آ جاتا ہے. لیکن اگر حکومت چاہے تو جو چاہے وہ ہوتا ہے. میں آپ کے ذریعے اسپیکر صاحب حکومت سے مطالبہ کروں گا, درخواست کروں گا کہ موسی بیوٹیفیکیشن پر توجہ دیجیے. ہمایت ساگر, عثمان ساگر کو سوکھنے سے بچائیے, اور اس کے ساتھ ساتھ شہر حیدرآباد ترقی ضرور کر رہا ہے اور ٹریفک بھی بڑھ رہی ہے, اور ٹریفک کی وجہ سے ساؤنڈ پولیوشن اور ایئر پولیوشن بھی ہو رہا ہے. SRDP میں ٹریفک کنجیشنز کو کم کرنے کے لیے فلائی اوورز لیے جا رہے ہیں, اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. لیکن پرانے شہر میں بھی روڈ وائڈننگ کی ضرورت ہے تاکہ ہم ٹریفک کنجیشن کو کم کر سکیں. سر, سپورٹس اینڈ پلے گراؤنڈز کے تعلق سے بھی کہوں گا کہ GHMC میں سپورٹس اور پلے گراؤنڈز کے ڈیولپمنٹ کے لیے لیا گیا. سر, آنریبل اسپیکر سر, اٹس بین 10 years سر, before the formation of Telangana, I got a sanction of 2 sports playgrounds, sir. One stadium, one cricket stadium, sir. One full big stadium, 2 cricket stadiums. One at Badlaguda and the other at Falaknuma Educational Campus. Sir, 10 سال میں آج تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. کب ہوں گے کمپلیٹ؟ کب ہوں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں. میرالم ٹینک بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ لیا گیا, منظوری دی گئی, شکریہ. بہت سارے منظوری دیے گئے, شکریہ. لیکن آپ ایک جو برج آپ ہائی ٹیک سٹی درگم چرو کے اوپر جیسا ڈالے, ایک ایسا بیوٹیفل برج آپ میرالم تالاب پر بھی ڈالیے. میری کانسٹنسی میں سر, I have not one, I have 3 lakes, sir. I have been protecting those lakes, fighting. 6 سال ہو گئے صاحب سینکشن دیے, لیک بیوٹیفیکیشن آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا. تو آپ بتائیے سر کیسے ایسا؟ تو میں امید کروں گا کہ آپ بلا گڑا اسپورٹس اسٹیڈیم, فلک نما کیمپس کا بھی لیں گے, اور لیک کو پروٹیکشن کے لیے بھی آپ اقدامات اٹھائیں گے. سر ایک 10-15 منٹ سر, پلیز سر. سر آپ بولے سر ختم کریں گے, اکبر صاحب 15 دن کا میرا ٹائم میں دے دیا سر, میرے کو 15 منٹ دے دیجئے سر, پلیز سر. سر میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ شہر حیدرآباد میں فٹ پاتھ سے سر فٹ پاتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دے آر دا کنگ آف دا روڈ, بولتے ہیں کہ بادشاہ جو روڈ کا ہوتا ہے وہ پیڈسٹرین ہوتا ہے. لیکن آپ بتائیے سر کتنے فٹ پاتھ سے پرانے شہر میں, کتنے بزبیز ہے پرانے شہر میں, کتنے فٹ اوور بریجز ہے پرانے شہر میں. سر 7 years ہو گئے فٹ اوور بریجز کے لیے. میں نے کہا OSC ہاسپٹل کے پاس فٹ اوور برج کے لیے 7 years سے کہہ رہا ہوں. میڈیکل کالجز دیر, UG, PG, سپر اسپیشلٹی, فارمیسی, فزیو تھراپی, نرسنگ, اتنے کالج ہے, 5000 اسٹوڈنٹس آ دیر. فٹ اوور برج لیجئے, آج تک نہیں. میں اور میرے ساتھی ممتاز احمد خان صاحب گئے, ہم فٹ اوور بریجز بتائے, نہیں ہوا وہ بھی. ہاؤ مینی بس شیلٹرز آر دیر, بس بیز آر دیر. سر اٹ از ناٹ دیر سر. تو میں امید کروں گا کہ آپ اس تعلق سے بھی غور کریں گے, اور جو فلائی اوورز کا اور جس بارے میں میں نے کہا ہے اس پر بھی آپ توجہ دیں گے. اور سر اور ایک بات, لاسٹ نہیں بلکہ لاسٹ سے پہلے میں حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کئی لوگوں نے کہا کہ 2 bedroom نہیں بنیں گے, 2 bedroom نہیں مل سکتے. لیکن 2 bedroom کا کام GHMC ایریا, ریاست کے کئی دوسرے بلدیات میں تیزی کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ منسٹر صاحب نے کہا کہ قریب
1 लाख घर दिसंबर से पहले देंगे। और ये बात वो कह रहे हैं तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, हमारे पुराने शहर में भी काम हो रहा है, और जिस तेजी से काम हो रहा है हमको उम्मीद है कि ये बात सिर्फ बात नहीं होगी बल्कि हकीकत में 1 लाख घर देंगे, जिसके लिए मैं मुबारकबादी देता हूं। और ये भी जरूर कहूंगा कि 1 लाख घर के बाद उम्मीदें और बढ़ जाएंगी, तवक्कुआत और बढ़ जाएंगी। उम्मीद है मुझे कि इस 1 लाख घर के बाद अगर और 1 लाख या और 5 लाख की जरूरत होगी तो यह हुकूमत वो घरों को भी बनाएगी। मुझे यकीन है इस बात का, यकीन है मुझे इस बात का। लेकिन सर, मैं ये जरूर कहूंगा कि पुराने शहर की तरक्की की जब बात करता हूं तो इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि मुशीराबाद, भोलकपुर के एरिया में भी कई मसाइल हैं। गंदा पानी आता है, वहां के लोग के मसाइल पर तवज्जो दीजिए। हफीज पेट का इलाका है, बोराबंडे का इलाका है, एरागड्डे का इलाका है, ये सारे इलाकों में आज कई मसाइल हैं, बरकी, बल्दी का। और सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आई हैव बीन ऑलवेज बीन रिक्वेस्टिंग फॉर एसटीपी प्लांट्स टू बी टेकन अप। एसटीपी प्लांट्स क्यों नहीं लेते सर? एसटीपी प्लांट्स सीवरेज के लिए, वो गंदा पानी जो जा रहा है, एसटीपी प्लांट्स लगाइए कई जगहों पे, वो नहीं हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस ताल्लुक से भी जरूर गौर करेगी। और मैंने आज से 2 दिन कबल म्युनिसिपल क्वेश्चन पर मिनिस्टर साहब से, स्पीकर साहब आपके जरिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हम पुराने शहर के एमएलएस के साथ एक मीटिंग बुलाने के लिए। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि असेंबली सेशन के बाद एक मीटिंग बुलाइए ताकि हम अपने सारे मसाइल को आपके सामने रख सकें। और एक इंपॉर्टेंट मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जीएचएमसी में कई वैकेंसीज हैं, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में, या फिर वर्क एग्जीक्यूट करने के लिए ऑफिसर्स नहीं है, सैंक्शंस हो रहे हैं, वर्क कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। सर, वी ऑल्सो नीड फूड इंस्पेक्टर्स इन जीएचएमसी एरिया, फूड इंस्पेक्टर्स। ये कोविड के टाइम, ये कोविड के पीरियड में फूड इंस्पेक्टर जरूरी है सर। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस ताल्लुक से भी जरूर गौर करेगी। पुराने शहर में हम बार बार मुतालबा करते आए हैं कि पुराने शहर में थोड़े से आरटीसी बसेस और छोटे बसेस को आप शुरू करिए, लेकिन नहीं हुआ। और सर, एक इंपॉर्टेंट इशू में कहूंगा कि पुराने शहर में जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स हैं, बड़े बड़े ड्रेन्स हैं, जैसा मेरे एरिया में मुर्की नाला है सर, ये मुर्की नाला को मैं प्रोटेक्ट कर 200 फीट का नाला है सर इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बल्लागोड़ा, पूरा आता है। एंड आई थिंक दिस इज द ओनली मुर्की नाला स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का काम ये एक ही मुर्की नाले में हुआ सर। देयर आर मेनी अदर। यस, ये डीसिल्टिंग बराबर नहीं होती, साफ सफाई नहीं हो रही, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको करेंगे। और मैं सर, जब मैंने कई बातों में तारीफ की सर, आई रन हॉस्पिटल्स, आई नो व्हाट इज द पॉवर्टी, और एक बीमार आदमी कैसे तड़पता है मुझे मालूम। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं बस्ती दवाखानों के लिए कि इतने बस्ती दवाखानों का जाल फैला दिया है। ये एक बहुत अच्छा काम है और वक्त की जरूरत है। मैं ये भी जरूर कहूंगा कि आने वाले इलेक्शन में अगर कोई इलेक्शन जीतेगा तो वही जीतेगा जो हेल्थ सेक्टर पे काम करेगा, क्योंकि हेल्थ, आज कोविड के बाद हेल्थ की इंपॉर्टेंस मालूम हो रही है लोगों को। और ये बस्ती दवाखाने जरूर, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही मददगार साबित होंगे, और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं हुकूमत को। और साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि जीएचएमसी में सबसे बड़ा मसला अगर है तो वो राशन कार्ड्स का है। राशन कार्ड्स कई लोगों के पास नहीं है। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जीएचएमसी इलेक्शन से पहले जितने दरखास्तें आई हैं उन दरखास्तों को क्लियर करिए। और मैं ये भी कहूंगा सर कि हमारे पास एक बेगर फ्री एरियाज बनाने के लिए रिहैबिलिटेट करने का काम किया गया था। अब फिर गुर्बत की वजह से काफी बेगर्स आ रहे हैं। और सर, मैं लास्ट में सर, बिफोर कंक्लूडिंग सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, कि आपके 1 लाख घर जब बनेंगे तो उस वक्त मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप किसी को दें तो फिजिकली, मेंटली चैलेंज जो है उनको दीजिए, सिंगल मदर्स को दीजिए, विडोज को दीजिए,
उसके बाद में जनरल पूल को दीजिए। सर ये लोग दे आर द सफरर्स आई वुड से कि फिजिकली चैलेंज जो है, और मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि पहले जीएचएमसी से वी यूज्ड टू हैव प्लेग्राउंड्स डेडिकेटेड फॉर दिस स्पेशल चिल्ड्रन एंड स्पेशली चैलेंज चिल्ड्रन। वी नीड टू फोकस ऑन दैट। सर हम मुसलमानों में करीबी रिश्तेदारियों में शादियां होती हैं, उसकी वजह से कई बच्चे दे आर मेंटली चैलेंज। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वो प्ले ग्राउंड्स में आप ये स्पेशल चिल्ड्रन के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज क्रिएट करेंगे, और आपके नए प्ले ग्राउंड्स में जो थीम पार्क्स आ रहे हैं, एल्डरली पीपल के लिए भी, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी आप पार्क्स में उनके लिए भी एरिया आप देंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कोई इन पर तवज्जो नहीं देता है। और मैं ये भी कहूंगा कि 1 लाख घरों में मैं उम्मीद करूंगा कि हम मुसलमानों को भी बराबर हक मिलेगा हमारी आबादी के हिसाब से। अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो ज्यादा वहां की आबादी के तादाद से ज्यादा वहां के लोगों को देंगे। अर्लियर सर इन JNNURM आई गॉट कंस्ट्रक्टेड सो मेनी हाउसेज, बट द सैड पार्ट इज दैट सर इंदिरा पार्क के पास अब वो फकीर रहते थे, बेगर्स रहते थे, पूरे इंदिरा पार्क के बेगर्स को लाके मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में JNNURM में जो घर बनाया उसमें डाल दिए। Sir, I fight and I protect the land. I get the sanction. I get it constructed. Sir, I got some more than 7,000 houses constructed in JNNURM. The sad state is that, sir, out of that 7,000, 3,000 houses are still unallotted. Sir, in this list of 84,000 which you would be doing, kindly ask them to bring the list of that. And also, sir, many encroachers have gone inside and occupied, sir. सर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो ऑक्यूपाई करें उनको निकाल दीजिए, नहीं, आप सर्वे करिए। इफ फाउंड रियली एलिजिबल एंड फिट टू बी इन पोजेशन ऑफ दैट, तो काइंडली एक पोजेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं स्पीकर साहब कि जो मसाइल को मैं उठाया हूं इस पर हुकूमत संजीदगी के साथ गौर करेगी और पुराने शहर की अजमत को फिर से बहाल करेगी। और जीएचएमसी से जॉब मेलाज भी होते थे पहले, मैं उम्मीद करता हूं कि वो जॉब मेलाज भी करेंगे। लोग परेशान हैं, उम्मीद करता हूं कि हाईटेक सिटी गच्चीबौली की तरह महेश्वरम और ये पुराने शहर शमशाबाद के अतराफ के एरिया में भी डेवलपमेंट आएगा, तरक्की आएगी, रोड बड़े बड़े होंगे और फ्लाईओवर्स आएंगे, और हम हमारे पुराने शहर को जल्द अज जल्द इस्तांबुल बनता हुआ देखें। शुक्रिया स्पीकर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। विनय भास्कर गारू। అధ్యక్ష, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ శివారు ప్రాంతాల్లో ఇతర మున్సిపాలిటీల్లో పౌర వసతుల గురించి ఇతర మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై స్వల్పకాల చర్చపై అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. గౌరవ మంత్రివర్యులు